So good evening all. We will start our class. So yesterday we have completed this data tab up to what if analysis we have completed. Now today we'll see review tab. Our review tab is very similar to whatever we have learned in MS Word review. That is spelling we already learned, thesaurus we already learned, translate we have seen, new comment we have seen, protect sheet also we have seen, password, protect workbook. Protect workbook means it is also a kind of password, but we can write, but we cannot. Some commands are disabled only. Okay, so we'll see these two commands only. But otherwise, all the commands you know very well. In the word, I already told you. Now in protect sheet, it was already taken in home tab also. Suppose I'm inserting a password in it. So after inserting the password, now we can't able to write anything. If you are supposed to write, then it will fetch a error that you need to unlock it. So I have to unprotect it, put the same password, then I can able to write now. So this is protect. It was similar to whatever we are learning in MS Word. Now next is protect workbook. It is also having password. So I am putting password here. Okay. Now after that, I can able to write it. Then what is the use of this protect workbook? Protect workbook use is, suppose if you are going to see this home tab, in that some of the options are disabled. जैसे कि insert sheet ये option disabled हो गया है, delete sheet ये option disabled हो गया है, format में ये तीन options rename sheet, move ये disabled हो गया, because वर्कबुक का जो स्ट्रक्चर है उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते अगर आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक किया तो. और अगर आपको लगता है कि ये पूरे ऑप्शंस, ये जो 5 ऑप्शंस है ये इनेबल्ड होने चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस you need to remove the password. So what we will do, we will go to protect workbook, we'll put the password here again, and then if you go here and if you see in home tab, now this particular option is enabled, this is enabled, and these three are enabled. तो ये पांचों ऑप्शंस क्या हो गए, जो डिसेबल हो गए थे पासवर्ड देने के बाद, ये इनेबल हो गए. तो ये 5 चीजें आप ये ऑप्शन में कर सकते हो. ये प्रोटेक्ट वर्कबुक में, प्रोटेक्ट शीट में तो पूरा लॉक हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते. प्रोटेक्ट वर्कबुक में कुछ काम आप कर सकते हैं, कुछ चीजें आप डिसेबल कर सकते. तो ये दो चीजें मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट शीट. सो लास्ट इज व्यू. यहाँ से आज एक्सेल खत्म हो जाएगा. सो इन व्यू, first option is normal view. This is normal view. Whatever view you are seeing, it is a normal view. In Word also we have seen various views. 5 views we have seen: draft, normal, page layout, page break. Okay, such kind of views we have seen. Now here, first one is normal view. Second is page break. Page break means whatever you have written, that you can able to see it in such a way. Now see, this is page 1, this is page 2, this is page 3, page 4. Means when you take the printout, so up to this 50, cell number 50 and column number I, this much portion will be printed on paper 1. Then in paper 2, this much portion will be printed up to this. Then paper 3, this much portion, and paper 4 likewise. So if you want to see that how many paper are going to be used while printing, so in such a case, you have to use page break view option. Okay. So अगर आपको नॉर्मल देखना है तो नॉर्मल में भी आपको दिखाई देता है. यहाँ पे देखो एक लाइन दिख रही है बारीक सी, ये है ना, ये पेज 1 है, यहाँ तक है. ये देखो, ये सॉरी, ये वाला आई वाला, ये पेज 1 है, ये पेज 2, ये पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, इस तरह से जाएगा वो. ये इसका मोशन इस तरह से रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज पेज लेआउट व्यू. तो ये पेज लेआउट हो गया. इसमें आपको हेडर और फुटर दिखाई देता है पेज लेआउट में, और मतलब इसमें सारी चीजें दिखाई देती है, हेडर फुटर. पहले दो व्यू में आपको हेडर फुटर नहीं दिखता, बट स्पेशली ये वाला पेज लेआउट में आपको पूरा एंटायर पेज कैसा दिखेगा वो आपको दिखाई देता है. फिर से नॉर्मल में जाते हैं. तो ये 3 हो गए, नॉर्मल, पेज ब्रेक. आपको बस क्लिक करना है, कुछ करना है, सिर्फ क्लिक करके देखो कैसा दिखता है. यहाँ सिर्फ क्लिक करके देखो, तो इस तरह से आपको वो अलग अलग व्यूज दिखाई देंगे. और इसका आखिरी है कस्टम व्यू. कस्टम व्यू का मतलब होता है कि मुझे अगर कोई स्पेसिफिक व्यूज बना के रखने हैं, मान लो अगर मुझे 51 से लेके 58 तक का स्पेशल है, मुझे यहाँ पे अगर बार बार आना पड़ता है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कस्टम व्यू में जाता हूँ. यहाँ आने के बाद आपको ऐड में क्लिक करना पड़ेगा. तो मैं अगर इसका नाम देता हूँ 51 to 58, ऐसा नाम देता हूँ मैं इसको. ठीक है. दूसरा
इधर जाता हूँ, दूसरा इधर आता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ मैं, देन कस्टम व्यू में जाता हूँ, इसमें ऐड, और इसमें अगर मैं लिखता हूँ 84 to 91, इस तरह से लिखता हूँ, ये दूसरा व्यू हो गया। देन मैं स्टार्टिंग का ही लिखता हूँ, इतना सिलेक्ट करता हूँ, देन गो टू कस्टम व्यू, आई विल गिव द नेम एज से 1 to 8, ऐसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, 3 मैंने व्यूज बना दिए। अब मुझे कोई स्पेसिफिक व्यू आपको देखना है, जैसे मुझे यहाँ जाना है 84 वाले रो पे, तो क्लिक करके शो करो, तो डायरेक्टली पॉइंटर वहां लेके जाएगा और आप डायरेक्टली उतना पोर्शन देख सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करो, नीचे आओ, ऐसा करना पड़ता है ना। डायरेक्टली हम लोग स्क्रॉल करके जा सकते हैं, जैसे मुझे 51 to 58 पे जाना है तो डायरेक्टली वो लेके जाएगा। तो इसको बोलते हैं कस्टम व्यू। कस्टम व्यू मतलब आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया पे जाना, उसको कस्टम व्यू बोलेंगे। देन ये ग्रिड लाइन्स है, इसको आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। फॉर्मूला बार, इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हैं। हेडिंग्स ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन ऑन ऑफ, मतलब बहुत बार होता है कि ऐसा अगर नहीं दिख रहा है, बहुत बार होता है कि यार यार ये लाइंस क्यों नहीं दिख रही, आपके पहले किसी ने अगर चेंजेस करके रख दिए तो आपको लगता है ये लाइंस कहाँ चलेगी एक्सेल में, तो होते हैं रोज और कॉलम। तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू में जाके इसको ऑन करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर्मूला बार का तो बहुत यूज होता है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो यहाँ से ऑफ हो गया है, व्यू में जाके इसको ऑन करो। सिमिलरली हेडिंग है 1 2 3 4 और ABCD अगर नहीं दिख रही तो यहाँ से किसी ने ऑफ किया है, इसको ऑन करो। तो ये व्यू में सारे ऑप्शंस जो भी थोड़े से काड़े वाले ऑप्शन है पूरे व्यू में रहते हैं। देन जूम में जाओ, जूम में 200% अगर दिखते तो थोड़ा सा व्यू बड़ा दिखता है। ये जूम यहाँ पे भी होता है नीचे में, यहाँ से भी आप जूम कर सकते हो, है ना, इस तरह से। आपकी आंखें अगर अच्छी है, नॉर्मल है, तो 100 पे दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा तो बड़ा उसको, ये 100% हो गया। जूम टू सिलेक्शन मतलब मुझे अगर इतना ही पोर्शन बड़ा देखना है, जूम टू सिलेक्शन फिर से 100%। तो इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हो 100%। अब बचे ये 3 ऑप्शंस, बस इसके बाद अपना खत्म। तो पहला न्यू विंडो, हमने न्यू विंडो ऑप्शन अगर आपको याद है हमने वर्ड में भी देखा था। न्यू विंडो, न्यू विंडो का मैंने बताया था कि अगर आपको एक ही फाइल के मल्टीपल पोर्शंस अगर देखना है एक ही विंडो पे, देन आपको न्यू विंडो ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक विंडो, जैसे यहाँ पे नाम है वर्कशीट 1, मैं इसका एक न्यू विंडो बनाता हूँ। देखो ये वर्कशीट 1 of 2 हो गया पहला, तो यहाँ पे दो, एक ही फाइल के 2 कॉपी तैयार हो गए। फिर से एक बनाता हूँ, व्यू में जाके अरेंज, सॉरी, न्यू विंडो, तो 3 बन गए। देखो 1 2 3, यहाँ पे तीन फाइल बन गए, मतलब एक ही फाइल के 3 कॉपी बन गए और 2 कॉपी बन गए। अब मुझे एक साथ सभी कॉपीज देखने हैं तो यहाँ पे अरेंज ऑल नाम का ऑप्शन होता है। पहला है टाइल्ड, टाइल्ड में इस तरह से दिखेगा, मतलब आप एक ही फाइल है बट वो अलग अलग व्यू में। यानी अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे ये वाला पोर्शन देखना है 37 वाला, यहाँ पे देखना है मुझे सपोज ये वाला देखना है, और इधर में सपोज स्टार्टिंग वाला, तो आप एक ही फाइल के अलग अलग पोर्शंस एक साथ देख सकते हो। चेक करने के लिए बहुत इजी होता है, बहुत बार हमको कंपेयर करना पड़ता है वैल्यूज को, तो आप वो इजीली कंपेयर कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। देन अरेंज ऑल में दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, इसमें इस तरह से दिखता है। आपको जैसा लेआउट चाहिए आप वैसा लेआउट इसमें बना सकते हो। देन अरेंज ऑल में जाओ, यहाँ पे वर्टिकल है तो ऐसे वर्टिकल आते पूरे, 3 वर्टिकली कॉलम्स आएंगे। देन विंडो में अरेंज ऑल नाम का ऑप्शन है, उसमें आखिरी का है कैस्केड, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक आएंगे। ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये तो ऐसे फाइल्स आते हैं इसमें। तो ये एक ऑप्शन हो गया। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही फाइल रखनी है तो 2 को बंद कर दो, एक को रखो। तो इस तरह से आप एक फाइल को रख सकते हो। तो जितने विंडो बनाने आप उतने विंडो बना सकते हो। तो ये हो गया अरेंज ऑल। लास्ट ऑप्शन है फ्री स्पेस, नहीं, और ये 2 ऑप्शन भी देखें। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है, अब जैसे कि ये हेडिंग है हमारी नेम सरनेम मार्क्स, मैं इसको अगर स्क्रॉल करता हूँ तो वो हेडिंग देखो गायब हो जाती है ना, ये वाली। लेकिन ये मुझे रो नंबर 1 परमानेंटली दिखना चाहिए, मैं स्क्रॉल भी करूँ तो मुझे ये परमानेंट दिखना चाहिए। ऐसा अगर लगता है तो इसके नीचे पॉइंटर रखो और कहाँ जाओ, फ्री स्पेस में पहला ऑप्शन लो। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे
ये लॉक हो जाएगा। अभी इसको देखो, आप स्क्रॉल करोगे तो पहला वाला रो लॉक हो जाएगा, बाकी के सभी स्क्रॉल होंगे। ये किस लिए काम में आता है? जब आपको डेटा एंट्री करनी है, बहुत सारे वैल्यूज भरने लिखना है और पहला रो नहीं दिख रहा है आपको, तो उसको लॉक कर सकते हैं। फ्रीज फ्रीज कर देना बोलेंगे, जैसे फ्रीजर में होता है ना, बर्फ जम जाता है, वैसे वो रो नंबर वो जम गई है, अब वो घूमेंगे नहीं, मूव नहीं होगी। अगर आपको लगता है उसको मूव करना है तो इसको अनफ्रीज कर दो। तो अभी क्या होगा, अभी इसको मैं अनफ्रीज कर दे तो वो पहला वाला रो गायब हो गया। सो सेम उसी तरह से मुझे अगर ये पहला वाला कॉलम देखना है परमानेंटली और पहला रो, तो पहला रो बोले तो पॉइंटर यहाँ पे और पहला कॉलम बोले तो पॉइंटर यहाँ पे, तो मुझे रो भी लॉक करनी है, कॉलम भी लॉक करना है। तो वहां पॉइंटर रखो और फ्री स्पेस में जाओ। तो अभी देखो रो भी लॉक हो गई, कॉलम भी। आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो रो लॉक हो गई, और अगर ये यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो कॉलम लॉक हो गया, एक कॉलम लॉक हो गया। तो आप इस तरह से जितनी भी रो और कॉलम है खुद से लॉक कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। तो उसको बोलेंगे फ्रीज पेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जब भी आपको बहुत सारा डेटा लिखना होता है। इन दैट केस इट इज़ मोस्ट यूजफुल। इसको अनफ्रीज कर दो, ये अनफ्रीज हो जाता है। देन स्प्लिट नाम का ऑप्शन है। स्प्लिट मतलब अगर मुझे ये फाइल के 4 पोर्शन करने हैं, देखो स्प्लिट हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या होता है, ये विंडो हो गया अलग, ये पहला दूसरा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आपको लगता है कि न्यू विंडो कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसमें भी काम कर सकते हो। तो ये हो गया स्प्लिट। स्प्लिट मतलब एक ही वर्कशीट के मल्टीपल पार्ट्स तैयार करना। और लास्ट ऑप्शन है हाइड। हाइड मतलब यहाँ से ये वर्कशीट हाइड हो गई, वापस लाना अनहाइड। तो ये हाइड अनहाइड यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका MS एक्सेल खत्म होता है। ठीक है, तो करीबन 9 या 10 कुछ क्लासेस हो गए, तो उसमें हमने हमारा पूरा एक्सेल खत्म कर दिया। आई होप आपने प्रैक्टिस की होंगी उसकी, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो।